Yes. Good morning, student, and I hoping that you all are very well. And myself, Radhishan sir, and most welcome today in my online class to everybody. And so, dear children, you know that you have lot of time invest entire your home, and now you know that the half session has gone, means 7 months has passed of the year. Only 5-6 months is left. 5-6 months are left real, and I hoping that the students properly not reading and writing, not doing the work, because when I call phone to the parents, mostly they giving the complaint ki sir, my child is not doing the hard work and not reading the book. So dear children, it is very bad, it is very harmful to you, and it means you are investing your education, and this investing education is not better for you. You are making bad future. Your bad future never will support to you in your life. So dear children, I hoping that you will follow me, and I'm saying today ki please, which chapter I explain in online classes, you have to explain, you have to read that chapter very carefully, very carefully. Otherwise, it means you are reducing your reading skill, writing skill, and learning skill. So, one more important point, the students who's watch my videos, they will write his name in the comment box. Ki sir, I have seen your video and I have understood this paragraph very well. This you will write in comment box and send to me. Who student will write this overall information and name send, those students will get good marks. Because I don't know ki how many students are watching my videos and how many students are not watching my videos. Only written here views, but I confuse here ki who student see my video, watch my video. So please, if you watch my video and listen carefully, to write in comment box your name. Comment box your name. अपना नाम कमेंट बॉक्स में डाल दें, राइट करें, और
जिससे कि हमें ये जानकारी होगी कि आपने हमारी वीडियो को देखा। एंड आई कंफर्म दिस कि you have seen my video and I can give good marks to you, because this video is 10 marks. Who student will see and read, watch my video, read paragraph, chapters carefully. So this is 5 marks you can get. So don't forget, written in a comment box your name. अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। और जो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे, करेंगे, कमेंट करेंगे या लिखेंगे, वही मार्क्स के पात्र होंगे। दे विल गेट मार्क्स ऑफ 5 मार्क्स ऑफ द वाचिंग वीडियो। ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ द एयर, because today I have sent the question answers of these chapters and book work also, but as a health problem, because today my health was not well, so that is why I couldn't make the video, and today I am making the video of this chapter, and you will listen this carefully. So dear, listen carefully. Now, air, everybody know what is air. Air is a natural gas, or natural elements, natural invisible elements, which is very compulsory for all living beings. You know that gas or air, it is a very compulsory for living beings. सजीव प्राणियों के लिए हवा यानी एयर, इट इज वेरी नेसेसरी. विदाउट एयर, विदाउट एंड यानी एयर, हवा, nobody can survive or live on the earth. So our earth is surrounded by a huge blankets of the air called atmosphere. हमारी पृथ्वी चारों ओर से विभिन्न प्रकार की गैसों से एक कंबल की तरह ढकी हुई है. दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. जो हवा रूपी एक चादर, एक सीट हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, यही एयर ब्लैंकेट यानी हवा की चादर वातावरण या एटमॉस्फेयर कहलाती है. राइट. वातावरण, वातावरण का मतलब होता है एटमॉस्फेयर. अगर हमारा एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, वहां पर शुद्ध हवा नहीं है, तो वहां का जो वातावरण गंदा कहलाता है, और ऐसे वातावरण में मनुष्य या किसी भी जीव प्राणी का जीवन संभव नहीं है. नेक्स्ट, ऑल लिविंग बींग्स ऑन हिज अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर, बिकॉज each and every type of living beings need the good atmosphere. Without good atmosphere, no any creature live on the earth, can't live on the earth. So this atmosphere means composition of the air, means blanket of the air. It is very compulsory on the earth. It is so necessary for living beings. It provides us air we breathe and protect us from the harmful effects of the sun rays. It is the atmosphere is a very compulsory because it provides us air which we breathe by the nose and mouth and inhale in our body. By this air, our body is lives.
इसी हवा के कारण हमारा जीवन जिंदा है। सो यू नो दैट विदाउट एयर, बिना हवा के कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। ये हमें क्या देती है? हमारी सांस को चलाने के लिए मदद करती है। सांस के साथ शरीर के अंदर प्रवेश करके हमको जिंदा रखती है एंड प्रोटेक्ट अस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेज, सनरेज। और कुछ जो सूरज से निकलकर खतरनाक गैसें और किरणें जो हमारी पृथ्वी तक आती हैं, उन किरणों से, उन रेज से हमको बचाती है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ द प्रोटेक्शन, बिना किसी इस हवा की लेयर के प्रोटेक्शन के बिना, nobody can survive on the earth. We would be baked alive by the heat of the sun during the day and get frozen during the night. If suppose there is no the blanket of the air available around the earth, so it means we everybody baked. We would be baked. हम लोग पक जाएंगे, यानी ईंट की तरह, भट्टे की में निकली हुई ईंट की तरह पक जाएंगे। एंड इफ व्हेन आफ्टर सनसेट, इट मीन्स द डार्कनेस एंड डार्क पार्ट ऑफ द डे, यानी नाइट। इन द नाइट वी ऑल फ्रिजिड, हम सब जम सकते हैं, बर्फ बन सकते हैं, क्योंकि रात में अधिक ठंड होगी और दिन में अधिक हीट होगी। तो क्या होगा? ये एटमॉस्फेयर, ये दोनों चीजों में, यानी बोथ नेचुरल एक्टिविटीज मेक इन बैलेंस, इसको बैलेंस बनाने का काम हमारी इस लेयर का ही होता है। सो इट इज दिस मास ऑफ एयर दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। तो जो एटमॉस्फेयर है, जो गैस का एक कॉम्बिनेशन है, गैस का कंपोजिशन है, गैस का जो मिश्रण है, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कई गैसें मिली हुई हैं, ये सारी गैसें, मिली हुई गैसें हमारी पृथ्वी को शेप करती हैं, बचाती हैं और एक नया टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर तैयार करती हैं जो हमारी लाइफ के लिए फेवरेबल हो, यानी जो हमारी लाइफ के लिए सुटेबल हो, राइट। तो चिल्ड्रन, ऐसा माना जाता है, हमारे जो ज्योग्राफियंस हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, उन्होंने इस सब सारी नेचुरल एक्टिविटीज को बहुत नजदीक से फील, एक्सपीरियंस लिया और उसको फील किया, उसको समझा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, क्या क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी हमारा जो वातावरण है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी गैस मिली हुई हैं और इसके कंपोजिशन का क्या महत्व है। और आज इस एटमॉस्फेयर के अंदर हम गैस के बारे में, जो हमारी विभिन्न प्रकार की नेचुरल गैसें इसमें कंबाइंड हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले, डू यू नो दैट एयर वी take in while breathing is actually a mixture of many gases। आप जानते हैं कि जो हवा है वो हम सांस के द्वारा हवा को अंदर खींचते हैं, यानी हमारी श्वास में हवा का प्रथम रोल है और ये श्वास के द्वारा हवा ही अंदर जाती है, न मिट्टी जाती है, न अधिक कोई और चीज जाती है। एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, बहुत सी गैसों का जो एटमॉस्फेयर में जो गैसें हैं और बहुत सी गैसें हैं, वही मिक्सचर हम अपनी सांस में उसको लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ह्यूज कैपेसिटी, यानी बिग कैपेसिटी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही पाई जाती है।
78% हमारी जो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। तो जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो आप यहाँ पर एक सर्कल देख रहे हैं, ये जो है हमारी नाइट्रोजन है और ये हमारा पार्ट्स ऑक्सीजन है। तो ओवरऑल आप जो देख रहे हैं ये सब क्या है, ये huge mass capacity of the oxygen and nitrogen available on in the atmosphere। जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का जो विशेष तौर से हम देखते हैं, तो ये ऑक्सीजन सबसे बहुतायत मात्रा में ना होकर कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बहुतायत मात्रा में दिया होता है। ठीक है। अब अगर हम ये ऑक्सीजन को लें, ऑक्सीजन देखें, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे ज्यादा हमारे इस एटमॉस्फेयर में है। इसके बाद फिर देखते हैं कि ऑल अदर गैसेस, इसके बाद जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ओनली बहुत कम मात्रा में है, 0 पॉइंट, ये देख रहे हैं आप, 0.03%। आर्गन ऑल गैसेस हमारी 0.04% है। और आर्गन कितना है, आर्गन हमारा जी 0.04% दूसरी गैसें हैं। इसके बाद अगर 0.93% जो है हमारी ऑर्गन है, तो कितना मान लीजिए, एक तो हमारा सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे तो हमारे पास 0.03%। ठीक है। अब अदर गैसेस कितना है, ऑल अदर गैसेस जो है हमारे पास अगर देखा जाए तो हम इसको ले लेते हैं 0.4%। तो जो 0.4% है, तो ये 0.4%, 0.4 ये हमारी ऑल गैसेस हैं, दूसरे में गैसेस। और जो हमारे पास 0.93% ये जो गैस हमारी है दूसरी गैस है। तो 4 3 4 4 7, और 7 मीन्स 7 और 3 10 एंड 1 एंड 0.2%, यानी 0.2%, 0.02% जो गैसेस हैं वो अदर हैं। बाकी जो 78 और जो तो ह्यूज कैपेसिटी से आर गैसेस अवेलेबल, नाइट्रोजन एंड oxygen available on the earth. So next, and these are two gases which make up the bulk of the atmosphere: carbon dioxide, helium, ozone, argon and hydrogen are found in the lesser quantities. Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. The pie chart gives us the percentage of the different continents of the air. Nitrogen is the most plentiful gas in the air. When we inhale, we take some amounts of nitrogen into our lungs and exhale it. But plants need nitrogen for their survival. They can not take nitrogen directly from the air. Bacteria that live in the soil and root of some plants, they take the nitrogen from the air and change it from form so that plants can use it. ठीक है, point it. जैसे फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, यू विल ड्रा दिस पाई चार्ट इन योर नोटबुक, राइट. सेकेंड एक्सप्लेनेशन दिस,
कि the carbon dioxide, helium, ozone, argon, and these are hydrogen, and found the lesser quantities of these gases. Apart from these gases, tiny dust particles. ये सारी गैसों में छोटे छोटे धूल कण मिले हुए होते हैं, और ये धूल कण जब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये हमारी बॉडी को इफेक्टिव कर देते हैं. Tiny dust particles are also present in the air. So the pie chart gives us the percentage. जैसा कि अभी आपको पाई चार्ट मैंने आपको बताया कि you will draw this pie chart carefully in your notebook. Very important this for to know the percentage of the gases in the atmosphere available. So nitrogen, it is the most plentiful gas in the atmosphere. हमारे जो वातावरण में सबसे ज्यादा भारी मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, और ये गैस हमारे बॉडी के अंदर बहुत कम मात्रा में जाता तो है, ऑक्सीजन के साथ ये जाता है. तो मनुष्य जो होता है, जीव प्राणी यानी लिविंग थिंग्स, नाइट्रोजन कैसे लेता है, पेड़ पौधे नाइट्रोजन कैसे लेते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स. नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट in the scientific methodology and technology. Nitrogen is very important to the plants and trees, but human being also take this. When the human inhale, the living beings inhale the oxygen, then nitrogen also enter the body. After exhaling, the nitrogen come out and oxygen is available continue involved in the blood. ठीक है. So but plants need nitrogen to survival. पौधों को भी ये नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है अपने को जिंदा रखने के लिए, यानी सर्वाइव करने के लिए, अपने को वृद्धि करने के लिए भी इसको. लेकिन दे कांट टेक दिस ऑक्सीजन नाइट्रोजन डायरेक्टली. ये इसको डायरेक्टली नहीं लेते. नाइट्रोजन भाई इनके पास नोज तो नहीं है, ये डायरेक्ट तो नहीं लेते. लेकिन कैसे लेते हैं नाइट्रोजन? ये नाइट्रोजन लेने का एक इनका तरीका है कि जो सॉइल में, जो मिट्टी में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को एज ए एयर लेते हैं आफ्टर दिस डिकैड यानी डेथ, आफ्टर डिस्ट्रॉय. बैक्टीरिया नष्ट होने के बाद ये नाइट्रोजन फिर पेड़ पौधे अपने ह्यूमस के रूप में यानी खाद के रूप में, इस बैक्टीरिया एज ए खाद में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये बैक्टीरिया पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बन जाती है. राइट. तो इतनी अच्छी जो बैक्टीरिया जो बनता है, वो पेड़ पौधे डायरेक्टली इस तरीके से नाइट्रोजन को ले लेते हैं और उसको डायरेक्ट this is very compulsory. So I know that bacteria so nice, and this way the bacteria plants can take very well, that live in the soil and root of the some plants take the nitrogen from air and change its form so that plants can use it. Oxygen is the second most plentiful gas in the air. Oxygen. Dear children, you know that oxygen is very compulsory. Oxygen is a very compulsory. Without oxygen, nobody can live on the earth. Humans and animals take oxygen from the air is that a breathe, and green plants produce oxygen during the photosynthesis. Green plants produce the photosynthesis and
during the photosynthesis in this way. Oxygen content in the air remains constant. If we cut trees, then this balance gets disturbed. ये जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है, continue oxygen available in the atmosphere only with the great support of plants, any trees. By this great support, अगर suppose that पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन का बैलेंस हमारा डिसमिस हो सकता है, और ये डिसमिस बैलेंस हमारी ऑक्सीजन एक दिन पर्यावरण से यानी वातावरण से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी. Green plants and produce oxygen during the photosynthesis. ये जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ऑक्सीजन को पैदा करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस से यानी सूर्य के प्रकाश के कारण. जब सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों पर पड़ता है, पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश लेकर, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, पानी लेकर, और जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर तैयार करते हैं तो उसमें से जो रिलीज गैस होती है वो दैट इज ऑक्सीजन. इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर remains constant. If we cut then this balance trees, तो then this balance gets disturbed. अगर हम पेड़ पौधों को काट देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो एक दिन क्या होता है कि ऑक्सीजन का बैलेंस बिगड़ जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस. नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी बहुत महत्वपूर्ण गैस है. इट इज वेरी वैल्यूएबल. ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो पेड़ पौधे अनेबल टू गिव प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अस. ये पेड़ पौधे भी हमें ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंड है. कैसे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे भोजन बनाने के रूप में लेंगे. व्हेन द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड दे नीड द कार्बन डाइऑक्साइड विच रिलीज्ड बाय द लिविंग थिंग्स. जो गैस जीव जंतु मनुष्य सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड. And it is very very important for plants and trees. Because of the plant and trees, they take the carbon dioxide to prepare the food. And after this food, preparing this food, they release the new gas that is called oxygen. Because when plants and trees, they prepare the oxygen, they take the carbon dioxide, sun rays, sunlight and minerals, water from the underground by the way of root, यानी जड़ों से पानी, खनिज पदार्थ लेकर सूरज का प्रकाश लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूरज का प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश एज ए फोटोसिंथेसिस कहलाता है. इस फोटोसिंथेसिस को के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर और जड़ों के द्वारा विभिन्न प्रकार के मिनरल्स और वाटर को लेकर वो अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं. इन द लीव्स, लीव इज द किचन ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स. फूड फैक्ट्री, लीव्स कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स. ये हमारी जो पत्तियां हैं वो हमारे पेड़ पौधों को भोजन निर्माण करने में पूर्ण सहायक होती हैं. ये किचन ऑफ प्लांट कहलाती हैं, और इनसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, सूरज का प्रकाश लेकर ये अपना फूड तैयार करती हैं. आफ्टर देन द प्लांट्स रिलीज द न्यू गैस ऑफ द ऑक्सीजन. ह्यूमन एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया. अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय अस and by the plants which make a perfect balance. However, the balance is upset by the burning of fuel.
such a coal and oil, that is coal and oil, they add the billions of the tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of the carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. Now, second, see this, and layer of the atmosphere. This full diagram you will draw in your notebook. Sure. नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर या लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. हमारा एटमॉस्फेयर कैसे इसका निर्माण होता है ये भी आपको समझना है. नेक्स्ट, एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर या लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर या स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, कोई भी हेडिंग आप ले सकते हैं. ठीक है. तो ये दो डायग्राम और structure composition of the year, dear children, you will draw in your notebook, and don't forget written in comment box your name. अपना comment box में name जरूर लिखें और मुझे सूचित करें. I have seen this video. Those students write in comment box here his name, they will get only marks. Thank you. Best of your luck.